15.1। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 में 5th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 6th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट 6th क्वेश्चन में गिवन है रेफर टू टेबल 14.7 इन चैप्टर 14 स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स। हमने टर्म 1 की सिलेबस जब कंप्लीट किया है तब चैप्टर 14 पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स, और चैप्टर 14 में आपको टेबल 14.7 की टेबल आपको दिखी, ये एग्जांपल में गिवन है। सो ये इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है 2 पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a student obtain less than 20% mathematics test, and second one is the find the probability that a student obtain marks 60 or up. So students, first of all हम solve करेंगे first part. So answer of first part is find the probability getting a less than 20% marks in mathematics test. Okay, so getting 20% less marks. Okay, इसकी probability हमें find out करनी है। So students, टेबल जो आपको given है टेबल 14.7, इसमें आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 0 to 20, okay, and number of students is 7 number of students getting 20% less marks in mathematics test. So probability of getting 20% less marks is p of less than 20% is equal to 7, okay, क्योंकि number of students कितने हैं 7 and the total number of students is 90, okay, आपको टेबल में ऑलरेडी गिवन है total is equal to 90. So 7 upon 90 is the final answer of first part. Okay. So first part में आपको यही find out करना था कि ऐसे number of students की probability find out करनी थी जिन students को 20% less marks आए हैं mathematics test. So students, अब हम solve करते हैं second part. So second part में आपको find करना है probability that a student obtain marks 60 or more. Okay. So table में आप देखिए 60 or more मतलब 60 marks भी आए और उससे above या उससे more marks. So 60 and 70 and 70 and up. ये दोनों class intervals include हो रहे हैं. So 15 and 8 number of students are there. 15 and 8 इनका addition करेंगे तो students कितने हो जाएंगे 20. Okay. So second part का आंसर होगा probability of getting 60 and more marks is 15 plus 8 is 23 upon total number of students is 9. So students, this is the final answer of second part. आपको फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करनी थी ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 20% से भी कम हो, तो वो कितने आए स्टूडेंट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी 7 upon 90। एंड सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना था गेटिंग 60 मार्क्स और मोर। सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है 23 upon 90। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन। So students, 7th question में given है to know the opinion of the students about the subject statistics. A survey of 200 students was conducted, which means यहाँ पे total number of students is 200. So total number of students is 200. Okay. Then the data is recorded in the following table. So students, ये table आपको given है. First column is for opinion and the second column for number of students. Like is 135 number of students. Number of students 65 when opinion is dislike. Okay, so आपको probability find out करनी है। यहाँ पे आपको दो parts given है। First of all आपको find out करना है probability that a student like statistics, and the second one is probability that a student does not like statistics. Okay, so first of all हम solve करेंगे first part. So probability of like students like statistics. Okay, so like के लिए क्या है यहाँ पे survey के according 135 number of students and the total number of students is 200. So 135 upon 200 is equal to 27 upon 40. Okay. So students, this is the final answer of first part. Okay. अब हम find out करेंगे answer of second part. So second part में आपको find out करना है probability of do not like statistics. Okay. So do not like statistics is the number of students is 65. 65 upon 200 which is equal to 13 upon 40. So this is the final answer of second part. 6th and 7th क्वेश्चन में आपको जो दो पार्ट्स गिवन थे आपको इसे सॉल्व करना था। आपको टेबल यहाँ पे 7th क्वेश्चन में गिवन थी, बट आपको 6th क्वेश्चन में हमने प्रीवियस चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में से टेबल 14.7 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट 7th क्वेश्चन में आपको टेबल ऑलरेडी गिवन थी। सो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व किया। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी ऑफ लाइक एंड द सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करनी थी प्रोबेबिलिटी डू नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 7th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 8th क्वेश्चन।
So 8 question में given है, refer to question number 2 in exercise 14.2. ओके, so exercise 14.2 में सेकंड क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है, जो हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ा था उसमें एक्सरसाइज 14.2 में सेकंड क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन है। इसी के अकॉर्डिंग हमने स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये आपको डेटा मिल जाएगा पेज नंबर 245। ओके, so refer to question number 2 exercise 14.2. what is the empirical probability that an engineer lacks? so यहाँ पे आपको गिवन है 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करना है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, second is more than or equal to 7 kilometer from her place of work, third is within half kilometer from her place of work. okay, so आपको यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसको मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया है। so यहाँ पे आपको जो डेटा गिवन है नंबर ऑफ किलोमीटर्स है, so उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे 3 पार्ट। so फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। so यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है लेस देन 7 किलोमीटर। so प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर। so according to data हम फाइंड आउट करते हैं। so 5 3 7 is not included in second row, 2 in third row, 3 5 again 3 in last row, 2 6 6। okay, so count 1 2 3 4 5 6 7 8 9। so 9, okay, so 9 is the probability when the kilometer is less than 7 kilometer। total number of engineer workers is 40। ओके, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, आप एक्सरसाइज 14.2 में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि डेटा के साथ आपको गिवन है कि 40 इंजीनियर्स के किलोमीटर्स हैं। सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्क किया इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स इज 40। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट 9/40। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन or equal to 7 kilometer। okay, more than or equal to 7 kilometer which means यहाँ 7 भी included होगा। so more than 7 kilometer मतलब यहाँ पे जो आपने मार्क किए ये क्या है, less than 7 kilometer। so बाकी जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, या तो 7 और more than 7 kilometers। okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and 31। the probability is 31 and the total number of engineers is 40। so the probability is 31/40। so this is the final answer of second part। okay, अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। so थर्ड पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है within half kilometer। okay, so within half kilometer, probability of within हाफ किलोमीटर। so within हाफ किलोमीटर, अब आपके यहाँ डेटा देख के समझ में आ रहा होगा कि within हाफ किलोमीटर कोई भी नहीं, 1 and 3 इस टाइप के नंबर है। हाफ किलोमीटर यहाँ पे कहीं भी इंक्लूड नहीं है। so the probability is 0/40। okay, क्योंकि 40 number of engineers and the probability is 0, so the final answer is 0 और the probability within half kilometer is 0। so this is the final answer। so friends, अब हम सॉल्व करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th and 10th क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी पर बेस्ड है। ओके, सो आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटी सॉल्व करनी है। सो 9th and 10th क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। सो अब हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन। ओके, सो 11th क्वेश्चन में गिवन है 11 bags of wheat flour each marked 5 kg actually contain the following weights of flour in kg। ओके, सो आपको यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो क्या है, 4.97 5.05 5.08 5.03 5.00 ये सब जो डेटा है आपको किस में गिवन है, इन केजी। ओके, एंड 5.06 5.08 4.98 5.04 5.07 5.00। ओके, ये जो डेटा है आपको यहाँ पे जो वेट गिवन है फ्लोर के, ये गिवन है आपको इन केजी। आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स chosen at random contains more than kg of flour। okay, so यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है probability of more than 5 kg flour। okay, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको डेटा में टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितने गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, 11 नंबर ऑफ वेट्स आपको गिवन है एंड आपको फाइंड आउट करना है मोर देन 5 kg। मोर देन 5 kg में कौन से नंबर्स इंक्लूड होंगे, 5.05 5.08 5.03 5.06 5.08 5.04 5.07। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1 2 3 4 5 6 7। okay, so 7/11। okay, so the probability
probability of more than 5 kg of flour is 7/11. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि 5 kg से अबव कितने नंबर ऑफ वेट्स थे 7. ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ वेट्स आपको कितने गिवन थे 11. आपको 11 डिफरेंट फ्लोर पैकेट्स के वेट गिवन थे, एक 4.97. इसी में से आपने फाइंड आउट किया मोर देन 5 kg. Okay, so more than 5 kg is 7. The total number of weights given in this data is 11. So the probability of more than 5 kg of flour is 7/11. So students, this is the final answer of 11th question. अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन. So students, I hope आपको 11th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं 12th क्वेश्चन. So students, 12th क्वेश्चन में गिवन है, in question number 5 exercise 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table. ओके, सो इन एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन 5 में जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ किया था, तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरीके से ड्रॉ हुआ था. ओके, फर्स्ट कॉलम इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड द सेकंड कॉलम इज फॉर फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 30. ओके, सो आपको क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड आउट करना है regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million or ppm of a certain city for 30 days. Using this table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16, which means this term. Okay, 0.12 to 0.16 की आपको यहाँ पे probability find out करना है of concentration of sulfur dioxide. Okay, so हम यहाँ probability find out करते हैं. So probability of concentration of sulfur dioxide in 0.12 to 0.16 class interval or interval. So 0.12 to 0.16 for frequency students is 2 and the total frequency is 30. So the probability is 1/50 and probability of concentration of sulfur dioxide in 0.12 to 0.16 interval is 1/50. So students, this is the final answer of 12th question. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 13th क्वेश्चन. So students, आई होप आपको 12th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं 13th क्वेश्चन. So 13th question में given है, in question number 1 in exercise 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students. Okay, so the total number of students is 30. Okay, use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB. Okay, so यहाँ पे आपको probability find out करना है the student having a blood group AB. So probability of blood group AB. Okay, so ये जो टेबल है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये हमने ड्रॉ करी थी इन एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डेटा गिवन था, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करी थी. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फर्स्ट कॉलम इज फॉर ब्लड ग्रुप एंड द सेकंड कॉलम इज फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो द ब्लड ग्रुप्स आर A, B, O एंड AB. सो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है स्टूडेंट हैविंग अ ब्लड ग्रुप AB. सो स्टूडेंट हैविंग अ ब्लड ग्रुप AB इज 3 and the total number of students is 30, so the probability is 1/10. Okay, so the final answer is hence probability of a student having a blood group AB, okay, having a blood group AB is 1/10. So students, this is the final answer of 13th question. So the student having a blood group AB is 1/10. So this is the final answer of 13th question. So students, आज हमारी NCERT एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हो गई है एंड चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट हो चुका है. सो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड साथ में NCERT एक्सरसाइज 13.1 भी सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो. Thank you students.